Hey, what's up? This is Hitanshu. Let's today talk about just a Q&A section. Let's start. Hey, please just ask questions regarding the coding. Yes, please ask the question. Yeah, Ayush. Hello. Yes, ask questions, please, if you have any. Just chit chat. Actually, HTML is basic. Provide us basic structure of any website. Okay. Just firstly, I'm telling you what is HTML. HTML is provide a hypertext markup language, which is used for provide a basic structure, skeleton structure to any website. Okay, this is work under all HTML, and web designing is the front end work of a website is come under web designing, in which we have all the color settings, text settings, UX and UI, everything is inside the web designing part. uh, for the practical section, I am thinking for the from the next Sunday, every Sunday to Sunday I am giving the practical section on the YouTube. We started from the basic web development to advanced web developments, and that live section, we in which each week we make a project of web development and deploy it online. Ayush, can you on your camera and we can chit chat regarding the programming some questions Q&A section? For the yes, for the dedication is only dedication for a programmer is money. Literally. Okay, and from me it is like a relaxing part of my whole time. It give me the relaxation for all the things from the whole social life, and in okay. Good evening, photographer sir. Hindi, okay. Let's talk in Hindi if you want, everyone. Good morning, sir. Good morning. Good evening. What's up right now? अरे कैमरा ऑन करना प्लीज. अरे यार लाइट नहीं है. बाहर आ जाओ. Sir, where you wanna see yourself after 5 years? After the 5 year, my main goal is Gautam, please, can you turn off your mic, please?
Actually, my goal is for the basic for the freelancing, because in the freelancing it is very much possibilities. How much you make can make the money. Okay, it is not the bounded any time. Not the time is bounded. Not the income is bounded. In the freelancing, which how much you dedicated to your work, that make your money that much. And another is for opening a coaching center literally for the coach by the helping the people we can make the social community for the helping each out other and the making the open source projects for everyone can make contribute there. Okay, again for Hindi. Aish, can you come live with me? Anyone want to come live with me, please? बेसिक फॉर जैसे कि मैं आपको अब हिंदी में आ जाता हूँ, चलो ठीक है. वी आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम श्री गंगानगर, राजस्थान. Headphones are my the Zebronic Thunder. Oh, Ayush. Hello, Ayush. Ram Ram sir. How are you going? Ram Ram sir. Ram Ram. About the Django. Django is Django जैसे सबसे बहुत अभी तक का सबसे बेस्ट बैकएंड फ्रेमवर्क है पाइथन का और बाकी सब लैंग्वेजेस मिला के, क्योंकि इसके अंदर आपको सिक्योरिटी, स्केलेबिलिटी और टेस्ट. ओके. Anyone is there? Okay, fine. Hello. Yeah, Ishan. Hello. Can you come live with me? Django is the best framework till now for the backend. In just a sentence, okay? Because Django provides the scalability, security, and the very much all thing of for the backend is provided in just a framework, in just a package. Because framework is like super powerful for the backend because it provides some database also. For the basic purpose, we can use with the SQLite, and if we want to migrate, then we can use Postgres for the deployment. Okay. Ishan, can you share this story for everyone so can come into this live stream? Can you share this story, please? Live stream. फ्रंट एंड में कलर पिक करने के लिए तो सबसे पहले जो मैं यूज करता हूँ वो कलर पिकर है, और फिर उसके बाद में कलर स्टैम्प करके भी कोई एक वेबसाइट है जिसमें अच्छे से मिल जाते हैं अपने को कलर कॉम्बिनेशंस. और साथ में W3 स्कूल का जो
पैलेट है, कलर पैलेट, वो भी काफ़ी अच्छा है, वहाँ पे भी अपने को काफ़ी कलर मिल जाते हैं। फिर अदरवाइज फिर अपने को वीएस कोड के अंदर अपन खुद भी अपन जब कलर डाल रहे होते हैं तो वहाँ पे अपने आ जाता है कि अपने को किस टाइप का कलर कॉम्बिनेशन रखना है, तो वहाँ पे अपन कलर पैलेट आ जाता है। और अगर अपन खुद का कलर पैलेट बनाना चाहते हैं तो HTML के अंदर अपन इनपुट के अंदर जो टाइप होता है वहाँ पे अगर कलर लिख देते हैं तो अपन खुद का कलर पैलेट बन जाता है अपना वहाँ पे। तो अपन सीधा वहाँ से भी अपन उसको एक्सेस कर सकते हैं, जहाँ पे अपने को हेक्स वैल्यू, RGB वैल्यू, RGBA वैल्यू सब कुछ प्रोवाइड होती है, तो अपन वहाँ से भी उसका यूज़ कर सकते हैं। And other question? Yeah, if anyone want to ask any question, please. वेब डेवलपमेंट शुरू करना है तो आज के टाइम अगर अभी जैसे बताता हूँ तो पाइथन से शुरू करना बेटर रहेगा, क्योंकि PHP नो डाउट बहुत अच्छा था किसी टाइम में, लेकिन आज के टाइम में उसकी डिमांड बहुत कम हो गई है। तो अगर आपको अपना बैकएंड स्ट्रॉन्ग करना है तो पाइथन के साथ पाइथन शुरू करो, और फिर उसके साथ में पाइथन के अंदर जेंगो फ्रेमवर्क इज द बेस्ट। और अगर आपको कोई छोटी एप्लीकेशन बनानी है तो फ्लास्क इज अच्छा है, वो फ्लास्क भी अच्छा है काफ़ी। और फिर उसके बाद में वेब पाई आता है, काफ़ी सारे फ्रेमवर्क्स है। Akhil, can you ask your question again, please? आई थिंक अखिल ने पूछा था हेडफोन कौन सा है, शायद से ये पूछा था ना। हेडफोन है जेब्रोनिक्स का थंडर। एंड ask me questions if you any have. And Navdeep, send the wave. अरे नहीं, DSA हार्ड नहीं है, बस उसके अंदर एक लॉजिक्स होते हैं। अगर आप अपने एल्गोरिदम को अगर सेट कर लोगे तो बस आपको लॉजिक्स पे पकड़ रखनी है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फिर पूरा प्रोग्राम डिपेंड नहीं करता, आपको बस लॉजिक अपना स्ट्रॉन्ग रखना है, ताकि उसकी वजह से फिर उसके साथ में आप अपना पूरा कोड बना सकते हो। व्हाट अबाउट फ्रंट एंड, कहाँ से शुरू करूँ? तो सबसे पहले आपको HTML के बेसिक आने चाहिए। ये नहीं कहता कि आपको पूरा डीप तक जाना है HTML के। HTML CSS बेसिक चल जाता है। फिर उसके बाद में आपको फ्रेमवर्क बहुत हेल्प करता है, तो सबसे फेमस है बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप के बाद में आ जाता है अपने मटेरियल CSS। अगर आप रिएक्ट के साथ में कर रहे हो तो मटेरियल UI जो गूगल का बहुत अच्छा फ्रेमवर्क है रिएक्ट के साथ में करने के लिए। रिएक्ट एक बता देता हूँ, रिएक्ट लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट की, फ्रंट एंड, बैक एंड और मिडलवेयर तीनों तरीके से अपने को यूज ले सकते हैं, जो बहुत रोबस्ट लाइब्रेरी है अब तक। सबसे जो मेरी पर्सनल फेवरेट लाइब्रेरी है रिएक्ट। तो अगर आपको वेब फ्रंट एंड शुरू करना है तो HTML और CSS से एकदम बेसिक शुरू कीजिए, फिर जावास्क्रिप्ट से पे आ जाइए, फिर उसके बाद फ्रेमवर्क CSS के हो गया। कॉलेज के प्रोजेक्ट्स के लिए फ्रंट एंड थोड़ा बहुत आना चाहिए। अगर आपका जितना अच्छा बैक एंड होता है तो उससे क्या होता है, लोग इंप्रेस होते हैं कि आपने अच्छे अच्छे लॉजिक्स लगाए हैं। नो डाउट कि जो सामने वाला जो क्लाइंट है वो फ्रंट एंड ही देखता है, उसको लॉजिक से इतना नहीं मतलब होता, लेकिन जो अगर प्रोफेशनल कोई देखता है तो वो उसका बैक एंड देखता है। तो इसलिए आपको बैक एंड और फ्रंट एंड दोनों पे नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। Are you planning for the startup? Actually, yes, I actually started a startup for the web development called High Web Mates, and I am now planning for the go for coaching also, online tutoring.
Navdeep, your question is clear? Your doubt is clear, okay? If you turn on your camera and live with me, it is feel better for me interacting. Actually मैं अपना पोर्टफोलियो वापस बना रहा हूँ, जिसमें काफ़ी सारे भी प्रोजेक्ट्स ऐड करने हैं जो आगे भी ऐड नहीं कर पाया था काफ़ी टाइम से। ओके, अपन इसका अलग से अपन बात करेंगे इसके लिए। ओके, अखिल कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहा अभी? ML। ओके, ML का भी अपन वेब डेवलपमेंट के बाद में ML पे शिफ्ट होंगे धीरे धीरे, थोड़ा स्टेप बाय स्टेप चलते हैं डेवलपमेंट के अंदर की। पहले वेब डेवलपमेंट करते हैं फिर ML पे आएंगे, क्योंकि ML सीधा करना लोगों के ऊपर से चला जाता है। फिर मेरे भी चला गया था स्टार्टिंग में, तो क्या चल रहा है क्या नहीं होता बहुत मुश्किल हो जाता है। बट एज यू फॉर इंटरव्यूज, जब उनको हम प्रोजेक्ट्स एड्रेस करेंगे तो अपना फ्रंट एंड भी मैटर करेगा उससे। नहीं, फ्रंट एंड और बैक एंड, जैसे मैंने भी बताया कि फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों मैटर करता है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन पड़ता है फ्रंट एंड से, फिर उसके बाद में वो लॉजिक्स पे आते हैं कि आपने लॉजिक्स क्या क्या लगाया है। अगर ई कॉमर्स वेबसाइट है तो कि कार्ड अपडेट फ्रिक्वेंटली हो रही है कि नहीं हो रही, और अगर यूजर ऑथेंटिकेशन कैसे, एडमिन पैनल है या नहीं है, किस टाइप से आपने एडमिन पैनल बनाया है, तो वो सब कुछ बैक एंड बाद में पूछते। पहले देखते फ्रंट एंड लुकिंग वाइज कैसी है आपकी वेबसाइट, कि आपको देखते इंप्रेस कैसे हो रहा है कोई सामने वाला क्लाइंट अगर कोई है तो वो क्यों आपका प्रोडक्ट लेना चाहेगा, कितना सुंदर है वो, ये सब कुछ देखते हैं पहले। फ्रंट एंड भी इंपॉर्टेंट होता है, बैक एंड तो होता ही है, साथ में फ्रंट एंड भी बहुत अच्छा होना चाहिए। हाँ, मिडलवेयर मिडलवेयर होता है जो बैक एंड और फ्रंट एंड दोनों को जोड़ के रखता है। जैसे अपन बैक एंड में मान लो कोई लैंग्वेज यूज करें, जैसे कि अपन रिएक्ट का यूज करें, जैसे रिएक्ट हो गया, फ्रंट एंड के अंदर भी काम आ जाता है। बैक एंड मतलब डेटाबेस को बैक एंड से कनेक्ट और फ्रंट एंड के अंदर कनेक्ट करने के लिए उसको मिडलवेयर कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो सबसे अच्छा अब तक का मिडलवेयर है वो जावास्क्रिप्ट का एक्सप्रेस है, जो डेटाबेस को डायरेक्ट फ्रंट एंड से कनेक्ट करता है। जैसे कि वो एक्सप्रेस जो है वो बैकएंड की तरह मान लेते हैं अपन उसको, लेकिन उसमें यूजर ऑथेंटिकेशन और भी हो जाता है। तो मिडलवेयर जो अपने को फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटाबेस को कनेक्ट करके रखता है आपस में। हार्ड कोडिंग का मतलब ये होता है कि अपन कोई वेब डेवलपमेंट के अंदर हार्ड कोड, जैसे अपने कोई वैल्यू पहले से यूजर दे देता है, जैसे कि मेरा नाम हितांशु है तो उसमें जैसे लिखाएगा हाय हितांशु। अगर अपन ने किसी HTML टैग के अंदर हाय हितांशु दे दिया तो वो हाय हितांशु आएगा। उसकी जगह अपने को डायनेमिक कोडिंग करनी चाहिए कि जैसे कोई भी पर्टिकुलर यूजर जब उसके अंदर लॉगिन करे तो उसका नाम रिफ्लेक्ट हो, वो होती है डायनेमिक कोडिंग। और जब मैं टेम्पलेट के अंदर ही पहले से वो नाम दे दूंगा तो वो होएगा हार्ड कोडिंग। वो हार्ड मतलब टफ वाला हार्ड नहीं होता, वो दूसरा हार्ड होता है, मतलब अपन पहले से उसको पर्टिकुलर वैल्यू दे रहे हैं। सर कैन वी ग्रेट कोलैबोरेशन, बट yeah we can collaborate, please after the section we can make a DM messages, okay। हार्ड कोडिंग का प्रॉफिट नहीं होता, बस ये अपने को स्टार्टिंग प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग करने में बहुत फायदा होता है इसका, जब अपने को पता रहता है कि अपने को करना क्या क्या चीज़ कहाँ कहाँ पे लगानी है। जैसे फॉर एग्जांपल अपने को फॉर्म कहाँ पे लगाना है, अपने को यूजर नेम कहाँ पे आना चाहिए, अपना कोई पोस्ट कर रहे हैं तो वो कहाँ पे आना चाहिए, अपना कोई प्रोडक्ट कहाँ पे शो होना चाहिए। जब तक अपना पास डेटाबेस जब तक तैयार नहीं होता और उससे पहले अपन उसका फ्रंट एंड क्रिएट करते हैं तब अपन हार्ड कोडिंग करते हैं। डेवलपमेंट के लिए नहीं, डेवलपमेंट और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में थोड़ा बहुत सिमिलरिटीज रहती है। जब अपन लॉजिक्स पे आ जाते हैं तब थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, लेकिन पर्टिकुलर
कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग वेब डेवलपमेंट पे नहीं रहती, यानी डेवलपमेंट में जरूरी नहीं होते। अगर अपन वेब डेवलपमेंट की पर्टिकुलरली बात करें, और अगर आप चले जाते हैं मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, तो वो टोटली अलग है, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, थोड़ा प्रोग्रामिंग और का पार्ट आ जाता है, तो ये सब कुछ चलता रहता है। Sir, can I call you if you are free? Okay, I can message you on the Instagram till night. Yes, anyone or other questions? बिहाइंड द लैडर है जो सक्सेस को बता दे कि अपने को ऊपर चढ़ना है। जब नवदीप के क्वेश्चन है, हाँ, इंटर्नशिप का क्या सीन है टायर 3 कॉलेजेस में? देखो, इंटर्नशिप को अगर आप में पोटेंशियल है तो आप किसी भी कॉलेज से इंटर्नशिप निकाल सकते हो। अगर आपने अच्छे प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं, आपका लॉजिक्स क्लियर है, जरूरी नहीं कि आपको सिर्फ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। आप डेवलपमेंट के बेस पे भी आप अच्छे अच्छे कंपनीज में जा सकते हो। अगर आप में पोटेंशियल है तो किसी भी कॉलेज से आप अपने कहीं कोई भी कंपनीज में जॉब ले सकते हो। इवन आजकल जो मल्टीटेक कंपनीज है, जैसे फैंग हो गया, या फिर अपना कोई भी बिग टेक कंपनीज है, वो भी डिग्री नहीं ले रहे, तो अपन डायरेक्ट, यानी कि पोटेंशियल होना चाहिए, अपन किसी भी 3rd ईयर कॉलेज से भी अपन इंटर्नशिप निकाल सकते हैं। जरूरी नहीं कि अपने को हमेशा IIT NIT मिले तो वही पहुंच सकते हैं आगे, ऐसा जरूरी नहीं। बस बात होती है कि अपने ने प्रैक्टिस कितनी करी है, पोटेंशियल कितना है, बस ये डिपेंड करता है। I have an idea for the startup. How can I start? ओके शान, स्टार्टअप का आइडिया देखो ऐसे होता है कि ना, अपने आप को पहले देखना पड़ता है कि लोगों को इंटरेस्ट किस चीज़ में, यानी कि वो चाहते क्या प्रोडक्ट चाहते हैं मार्केट में लाना। तो उसके ऊपर अपने को काम करना चाहिए। या फिर अपने जैसे कि अपने पहले इंटरेस्ट देखो लोगों का, या फिर अगर आपको पर्टिकुलर इंटरेस्ट है तो लोगों के अंदर वो चीज़ क्रिएट करो कि हाँ वो आपका प्रोडक्ट क्यों ले। ठीक है, फिर उसके बाद में आप लोगों के अंदर रीच बनाओ कि हाँ एक पर्टिकुलर पर्सन है, वो ये काम करता है, तो उससे लोग आके कॉन्टेक्ट करें। एक्चुअली मैंने अभी तक वो वेबसाइट खोल के भी नहीं देखी है, लेकिन कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा है, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा मुझे काफ़ी, तो मैं जरूर देखूंगा। मैंने अभी तक लिटरली वो वेबसाइट खोल के भी नहीं देखी, बार बार आया, लेकिन कॉन्सेप्ट उनका काफ़ी अच्छा है कि हाँ आप भी अपने कोरोना टाइम के अंदर अपने घर पे भी अपने कहते हैं बार्बर को बुला सकते हैं, अपना वो सलून का सारा वर्क करा सकते हैं, जैसे कि अर्बन क्लैप है, तो काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट लिया है। देखो ये डिपेंड नहीं करता कि ऑफ कैंपस ऑन कैंपस, तो वैसे ऑफ कैंपस ज़्यादा प्रेफर करूँगा, क्योंकि ऑफ कैंपस के अंदर अपने पास में कोई बाउंड्री नहीं होती, बिना बाउंड्री के अपन कहीं पे भी जा सकते हैं, मतलब किसी भी एरिया के अंदर जा सकते हैं। कोरोना कब जाएगा? देखते हैं कब तक जाता है, जब तक घर पे बैठे हैं, और तो क्या। Hitanshu.Sony versus Hitanshu.Pi. .Py versus .JavaScript versus .JavaScript is
for this time, for the web development particularly, I like JavaScript because JavaScript provide backend, front end, and data for the helping in database. मतलब like database ऐसा आजकल क्या होगा कि JavaScript काफी अलग डिफरेंट हो गया है। जैसे पहले जो आता था जावास्क्रिप्ट, जब तक ES5 और जब तक था तब तक ठीक ठाक था, यानी उस पर कुछ ज्यादा कर नहीं सकते थे। जब से ES6 का वर्जन अपडेट हुआ था, फिर उसके बाद ES7 आया, ES7 के साथ में जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन हुआ, फिर उसके बाद में NoSQL का भी इंट्रोडक्शन हुआ, जैसे MongoDB। फिर MongoDB के अंदर अपन जावास्क्रिप्ट में उसका कोड लिख सकते हैं। फिर JSON फॉर्मेट आए, JSON फॉर्मेट में फिर अपन डेटाबेस क्रिएट करने लगे NoSQL के, फिर डिप्लॉयमेंट बहुत ईजी हो गया। तो मतलब जावास्क्रिप्ट काफ़ी अच्छा, अगर अपने को लाइटर एप्लीकेशन बनानी है तो जावास्क्रिप्ट नो डाउट बहुत अच्छा है। अगर अपने को बहुत अच्छा बैकएंड चाहिए, मतलब बहुत बड़ी लार्ज एप्लीकेशन होनी चाहिए, तो उसके लिए पर्टिकुलर अपने को डिफरेंट बैकएंड रखना चाहिए, जो पाइथन का जेंगो है, द बेस्ट है वो। .cpp yeah, for JavaScript is for gaming purpose also, but we and C++ गेम डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा अच्छा है, और जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए भी अच्छा चल रहा है, लेकिन जावास्क्रिप्ट अलग ही लेवल है। Yes, anyone ask question? Ask more and more questions. This section is going incredible. तो यूनिटी और अनरियल इंजन काफ़ी अच्छे हैं, जो C++ के अंदर भी चलता है, कोडिंग कर सकते हैं। C# हो गया, पाइथन, तीनों लैंग्वेज सपोर्ट करती है, जावा भी करता है, ऐसी बात नहीं। लेकिन बेसिकली गेम डेवलपमेंट का मुझे इतना नॉलेज नहीं है कि कैसे कैसे होता है। हाउ टू मेक नाइस बैकएंड। ओके, नाइस विच मीन्स द बेस, अच्छा लॉजिक जैसे कि हो, तो फिर उसके अंदर अपने को क्या करना चाहिए, तो अपने लॉजिक सबसे है कि सबसे सिंपल रखने चाहिए लॉजिक, मतलब इन द सिंपल, मतलब जो फास्ट प्रोसेस हो सके। सिंपल ऐसा नहीं कि हाँ भी कोई भी आपका बैकएंड को तोड़ दे, यानी कि कोई भी आपकी सिक्योरिटी को खत्म कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, आपको एक डॉक्यूमेंटेड वे में होना चाहिए कि ताकि आप कुछ भी उसके अंदर करो तो बहुत जल्दी प्रोसेस हो सके, यानी कि उसके अंदर नेस्टिंग कम से कम करनी चाहिए, और फंक्शंस का यूज करना चाहिए जितना हो सके, या फिर क्लास का, ताकि जिसकी एक्सेसिबिलिटी बहुत ईजी रह जाती है फिर। सीधा हाईवे मेट्स को बोलो, कोई दिमाग मत लगाओ, क्या चल रहा है। और कोई क्वेश्चन? हाईवे मेट्स इज ऑनलाइन। हे हेलो, हाई वेब मेट्स रॉक्स। I am from High Web Mates company. Yeah, High Web Mates is awesome. It's very nice. Thank you. सीढ़ी चढ़ के दिखा, चढ़ेंगे किसी दिन सीढ़ी पे चढ़ेंगे। या और कोई क्वेश्चन किस या शेयर करो अपनी स्टोरी पे, ताकि और लोग बाग आएँ, ताकि उनको किसी को कोई भी प्रोग्रामिंग रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो वैसे आके Q&A सेक्शन में काफ़ी अच्छा रहता है, मतलब पर्टिकुलर मैं ही नहीं और आप भी क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो, यानी काफ़ी इंटरेक्टिव सेक्शन रहता है। तो प्लीज़ शेयर करो कि जिसको अगर कोई क्वेरी हो तो आके देखेंगे।
और कोई है क्या? डिक्लाइन। क्या हुआ? अरे कर लो ज्वाइन यार, ऐसे क्या? और कोई आने तो इतना फिर मज़ा नहीं आता यार लाइव सेक्शन करने का। फिर ऐसे कि कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछ रहा ना, कोई दूसरे पर्सन आ शेयर करो थोड़ा सा, ताकि और भी कोई दूसरा आके कोई क्वेश्चन और पूछे। सर नेक्स्ट प्रोजेक्ट पर वर्क शुरू करना कब से करूं? ये कौन आया है? सर व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट जीवनसाथी.com? क्वेश्चन फ्रॉम आयुष। छोड़ भाई छोड़, सब मुंह में। ऐसी चीजों को मैंने अभी तक खोल के नहीं देखा, तो ऐसा क्वेश्चन ना पूछे जाए। अभी तो इनका भी काम थोड़ा सा कम चल रहा है बेचारों का। सर नेक्स्ट प्रोजेक्ट पर वर्क शुरू करना है कब से करूँ? आपका प्रोजेक्ट, कैन यू टेल यू व्हाट इज योर नेक्स्ट प्रोजेक्ट? हाई वेमेट्स। एंड व्हाट आर यू प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट प्रोजेक्ट? कैन यू शेयर? आया देखा ना जीवन साथी। फिर क्या देखा आपने? देखते हैं। मीडियम आर्टिकल सबसे बेस्ट लगता है मुझे। मीडियम आर्टिकल में मतलब मेरे पर्सनल रिव्यू यानी कि काफ़ी अच्छे अपने आर्टिकल मिलते हैं मीडियम के ऊपर, तो मैं काफ़ी टाइम मीडियम आर्टिकल्स पे ही स्पेंड करता हूँ। या तो मीडियम हो गया, या फिर इंस्टाग्राम पे कुछ एक पेजेस हैं जो काफ़ी अच्छा कंटेंट देते हैं। मीडियम आर्टिकल मुझे द बेस्ट लगा अब तक, यानी कि आर्टिकल्स पढ़ने का मुझे शौक हो गया तब, यानी कि आर्टिकल्स के अंदर अपने को मिल जाता है कि अपने को काम कैसे करना चाहिए, क्या क्या चल रहा है टेक्नोलॉजी में नया, और अपने कोई प्रोजेक्ट का कोई आइडिया भी वहाँ से ले सकते हैं। तो मीडियम आर्टिकल इज़ द बेस्ट वन। इंस्टा बोट बनाना सिखाओ। अभी मेरा अभी इंस्टाग्राम का क्लोन बना रहा हूँ, उसके बाद में जरूर इंस्टाग्राम बोट भी बनाएंगे फिर। डीएम में आयुष। Four persons are with me. I will kill her. Oh. Please, can you turn on your cameras? Have live section interesting. Ayush, Hyper mates, anyone? Navdeep, please can you send me request, or I will send you request for the live section, interactive section. Retake orders. For the web development, please specify. अंधेरे में हूँ. And Ayush, can you share this live stream in your story or person DMs? Because this is going some boring if anyone don't ask any question. There are only 2% which are live with me.
कौन सी? आयुष भाई शेयर कर यार थोड़ा सा ताकि लोग बाग आए. Hi webmates, please share the story. Hi. Yeah, please ask question regarding programming. प्लीज डेटाबेस कौन सा बेस्ट है? डेटाबेस के अंदर मोंगोस डेटाबेस काफ़ी अच्छा जो नो एसक्यूएल पे है, और साथ में फायरस्टोर फायरबेस का जो काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि अपने को उसके लिए अलग से डेटाबेस सर्वर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती. तो फायरस्टोर भी अच्छा है जो नो एसक्यूएल पे है, और मोंगो डीबी वो भी काफ़ी अच्छा है जो दोनों नो एसक्यूएल पे है. तो नो एसक्यूएल मतलब थोड़ा स्केलेबिलिटी दे देता है, थोड़ा फास्ट है एसक्यूएल से, और थोड़ा इजी टू एक्सेस है. और थोड़ा उसके अंदर सिक्योरिटी थोड़ा सा इशू रहता है, क्योंकि अंदर इसमें जेसन फॉर्मेट में रहता है सारा डाटा, तो कोई भी एक्सेस इजीली हो जाता है. तो होता तो की के साथ में, लेकिन थोड़ा सा उसके अंदर सिक्योरिटी इश्यूज रहते हैं. वैसे अगर आपको बहुत हाई लेवल स्केल की चाहिए तो एसक्यूएल बेस्ट. अगर आपको अप्रोक्स 5 लाख to 10 लाख यूजर्स के ऊपर एप्लीकेशन चाहिए तो नो एसक्यूएल इज द बेस्ट वन. Okay, now we start a topic. So there come questions from that topic. Suggest me any topic. Divanshu. Please suggest any topic. And if you want to ask any question, please ask the question. IPL. Just IPL तो गया भाई. भाई अब तो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया की सीरीज चल रही, उसका डेटा पे करना, और तो क्या. हेलो. And हेलो यश, और भाई कैसा है? कोई प्रोग्रामिंग रिगार्डिंग क्वेश्चन डाउट? कोई प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो पूछ भाई, लाइव सेक्शन चल रहा है. Hello. Yes, please ask any programming related question. If you have any question. Yeah, ask question please.
ask more and more question. If you want any topic, let me start any topic. Just interaction with that topic. Hello. कोई क्वेश्चन और है तो बताओ यार, बैठे बैठे क्या करना फिर. Any question, please ask. Otherwise, I'm close this stream. Navdeep. Hey. कोई क्वेश्चन? अरे भाई आ जाओ साथ स्ट्रीम में. कोई क्वेश्चन? चल कोई टॉपिक बता दे, उस पर थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं. तो कोई टॉपिक बता. और भाई आदित्य टॉपिक बता कोई, या फिर कोई क्वेश्चन है तो बता. चल लाइव नहीं आना साथ में तो टॉपिक बता दे, क्वेश्चन बता. ऐसे ही हम फिर मज़ा ही नहीं आता यार लाइव स्ट्रीम करने का. बस बैठे हैं सारे. पहले इतना सही चल रहा था, बाकी सारे चले गए. धीरे धीरे क्वेश्चन सब भी खत्म हुए. तो स्टार्टिंग इतनी अच्छी थी. कोई क्वेश्चन हो या फिर कोई टॉपिक हो प्रोग्रामिंग रिलेटेड, वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ. कोई टॉपिक हो तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पे बताओ, इस टैग के बारे में डिस्कस कर ले. तो पहले कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग नो डाउट डेटा स्ट्रक्चर और एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. दोनों पे कमांड अच्छी होनी चाहिए. जो कंपनीज काफ़ी इसी के ऊपर अपने को देखते हैं. कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग ठीक है, ट्रेंड चल रहा है. प्रोजेक्ट्स भी देखते हैं, कई कंपनीज कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के बेसिस पे भी लेती है. तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग आनी चाहिए. ठीक है, ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ सिर्फ कॉम्पिटिटिव ही आनी चाहिए. रियल टाइम डेवलपमेंट भी आना चाहिए. आपके पास में कुछ प्रोडक्ट्स होने चाहिए कंपनी को शो करने के लिए कि हाँ आपके पास में ये प्रोडक्ट्स हैं कि आपने डेवलप किया है. तो ये कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का रिव्यू है. फुल स्टैक के बारे में डिस्कस. तो फुल स्टैक क्या होता है कि अपने जिसके अंदर फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस सब कुछ अपन कनेक्ट करते हैं. तो वो फुल स्टैक होता है. तो अब जिसके अंदर अपन फ्रंट एंड में जैसे HTML CSS जावास्क्रिप्ट ले लिया, बैक एंड में अपनों ने ले लिया Django डेटाबेस ले लिया अपनों ने, MongoDB या फिर NoSQL MySQL. तो ये फुल स्टैक में. और सबसे अच्छा अभी तक का स्टैक जो मेरा पर्सनल फेवरेट है वो है मर्ज स्टैक, जो पूरा जावास्क्रिप्ट का स्टैक है, जिसमें MongoDB डेटाबेस वो भी जावास्क्रिप्ट पे रन कर सकते हैं. और एक्सप्रेस जो मिडलवेयर है वो भी जावास्क्रिप्ट का, रिएक्ट जो फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड, Node.js वो भी बैक एंड जावास्क्रिप्ट का है उसके अंदर. तो यानी कि काफ़ी अच्छा है. मर्ज स्टैक हो गया या फिर मीन स्टैक हो गया, जो एंगुलर जिसके अंदर आर की जगह फ्रंट एंड में एंगुलर आ जाता है. और फिर मीवन आ जाता है. मीवन इतना पॉपुलर नहीं है लेकिन हाँ अच्छा, काफ़ी स्केलेबिलिटी उसकी भी काफ़ी अच्छी है, जिसके अंदर Vue.js आ जाता है. और भी जैसे फिर अपने पास में आ जाते हैं लैम्प स्टैक आ जाता है, जिसके अंदर अपन लिनक्स, अपाचे, MySQL और PHP को अपन इंक्लूड करते हैं. जो भी वो भी काफ़ी अच्छा एक स्टैक लेते हैं अपन. लैम्प स्टैक काफ़ी फेमस है अभी भी, आज के टाइम में भी. पहले बहुत हुआ करता था लेकिन अब जब से जावास्क्रिप्ट का ES7 वर्जन आया और उसके बाद में उसका ट्रेंड कम हो गया, फिर मर्ज स्टैक और का भी हो गया. तो
ये ठीक है कि हाँ लैम्प स्टैक चल रहा है, पुरानी वेबसाइट काफी भी लैम्प स्टैक को कर रही है, लेकिन जो अब नई जो एप्लीकेशंस बन रही है वो मन स्टैक को फॉलो कर रही है, क्योंकि मन स्टैक से बनी हुई एप्लीकेशन अपन मोबाइल एप्लीकेशन में भी यूज कर सकते हैं, जो नेटिव एप्लीकेशन होती है उसमें, और वेब एप्लीकेशन में भी यूज कर सकते हैं। पढ़ा दे। क्या पढ़ाना है भाई, टॉपिक बता यार, टॉपिक के बिना ऐसे क्या हवा में क्या तीर मारूं, टॉपिक बता किस पे तो डिस्कस करना चाहता है। और स्टार्टिंग अगर अपने को करनी चाहिए तो फ्रंट एंड से करनी चाहिए। मेरा पर्सनल रिव्यू है कि फ्रंट एंड को सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी रखनी चाहिए कि फ्रंट एंड कंप्लीट करके बैक एंड पे आऊँ। ऐसा नहीं करके एकदम एडवांस होना चाहिए फ्रंट एंड में, हाँ, लेकिन एक बेसिक स्ट्रक्चर देने के लिए किसी भी वेबसाइट को, तो आपको पहले फ्रंट एंड आना चाहिए, फिर उसके बाद बैक एंड में अपन शिफ्ट हो सकते हैं इजीली। बैक एंड से फ्रंट एंड भी आते हैं कई लोग, लेकिन जो मेरे पर्सनल जो रिव्यू है वो फ्रंट एंड करना चाहिए पहले, फिर बैक एंड पे शिफ्ट होना चाहिए। हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन। सक्सेसफुल की कोई लिमिट नहीं होती, अपन अपने अपने पैरामीटर्स होते हैं कि अपने को किस में अपने को संतुष्टि किस चीज़ में मिलती है, वही आपके लिए सक्सेसफुलनेस होती है। कि हाँ आपको जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ इस लेवल पे मुझे देखना था, जैसे आज से 5 साल बाद 10 साल बाद में, तो वो एक सक्सेसफुल पॉइंट होता है कि उसकी कोई लिमिट नहीं होती। अगर जितना अपन लिमिटलेस जाएंगे उतना अपन सक्सेस होते जाएंगे। और सिर्फ सक्सेस सिर्फ पैसे या फिर रिस्पेक्ट से पैसे से नहीं आती, रिस्पेक्ट भी होनी चाहिए लोगों के मन में अपने लिए, और अपने काइंडनेस भी होनी चाहिए। हाँ ये अपने लोग भाई अपने लिए अच्छा व्यूज रखते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसा ही सक्सेस होता है, ऐसा नहीं है। तो लोगों के अंदर अपने लिए अच्छी फीलिंग्स होनी चाहिए, हाँ, कि अपने व्यूज अपने लिए अच्छे होने चाहिए। आपके लिए और क्या मेरे लिए रिस्पेक्ट मनी तो है ठीक, सक्सेस के लिए अपन, आपके लिए और क्या है। देख मनी तो होता ही है सक्सेसनेस के पैरामीटर नापने के लिए, उसके अलावा मेरे लिए है कि हाँ लोग बाग मेरे बारे में थिंकिंग क्या रखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट वो है। और मैं लोगों के लिए क्या रखता हूँ, मैं लोगों को क्या दे सकता हूँ, वो एक सक्सेस होती है। कि हाँ भी कोई अपने से कुछ चीज दे अपने का, हाँ उसको अपन मना भी नहीं कर, उसको अपन सिखा सके। जैसे कि मेरे पास नॉलेज है तो मैं लोगों को सिखा सकूँ, हाँ ये चीज है तो अपने ऐसे से कर सकते हैं, वो वैसे कर सकते हैं, ऐसे वो कहता है। अभी लोग अपने मन, फिर उससे अपन लोग बाग अपनी तो रिस्पेक्ट करते हैं, लोगों के मन में अपने लिए अच्छे भाव होते हैं, तो वो एक सक्सेसनेस का मेरे लिए पैरामीटर है कि ठीक है हाँ लोग बाग अपनी रिस्पेक्ट करते हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। नवदीप आ गया, और कोई क्वेश्चन? नवदीप तेरा क्वेश्चन आंसर मिल गया था ना तुझे, तेरे बैक एंड और फ्रंट एंड वाला? नवदीप और कोई क्वेश्चन? उसका क्वेश्चन का मैंने आंसर दे दिया था कि फ्रंट एंड से स्टार्ट करते हुए बैक एंड पे आना चाहिए, फिर डेटाबेस पे शिफ्ट होना चाहिए। और कोई क्वेश्चन है क्या भाई? हेलो आदित्य, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग प्रोग्रामिंग, वेब डेवलपमेंट एंड अनदर थिंग रिलेटेड टू प्रोग्रामिंग? कोई टॉपिक या फिर कोई डाउट आदित्य? नो ब्रो, ओके। तो कोई शेयर और भी कर दो यार लाइव स्ट्रीम को। ऐसे कितनी देर तो हुई है अभी अपने को, सिर्फ 1 घंटा भी नहीं हुआ अभी तक पूरा।
बाहर हूँ अभी भाई. ओके. हितू. हेलो. Aditya, please drop down any topic so I can share this later for the IGTV and YouTube also. Just drop down your if any doubt topic. Nikhil, hello. कोई भी अगर प्रोग्राम रिलेटेड क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, आपको मैं आंसर दे दूंगा और आप इसको बाद में IGTV और YouTube पे दोनों पे भी देख सकोगे. प्लीज आस्क एनी क्वेश्चन इफ यू हैव एनी. पैसा डबल. हाँ, स्कीम तो ऐसे कि स्टॉक मार्केट में लगाओ पैसा. स्टॉक मार्केट. बैकएंड वेबसाइट which is for the backend for the website. Okay, most frequent asked question, FAQ. Backend for the website, personally review Python. In that, Django framework and Flask framework are the awesome. If you want to go with JavaScript, then go with Express.js and Node.js. And if you want to combine all the things inside the JavaScript, React.js is the best thing. 25 दिन में पैसा डबल करने की स्कीम बताओ सर. स्टॉक मार्केट में लगा भाई पैसा 25 दिन में, क्या 2 दिन में भी डबल हो सकता है. डूब भी जाता है, लग भी जाता है. तो बैकएंड के लिए तो देख सबसे सही तो यही है कि जेंगो अच्छा है काफी. यस प्लीज आस्क प्रोग्रामिंग रिलेटेड क्वेश्चन. आई एम नॉट फ्रॉम द कॉमर्स सेक्शन. कहाँ तक रुकना है, देख रुकने की तो कोई लिमिट नहीं होती. तो ऐसे पूछ कि कहाँ तक कर सकते हैं, क्योंकि करने की लिमिट नहीं होती. रुकने तो स्टार्टिंग में रुक जाओ. लेकिन हाँ ये है कि बेसिकली अपने को HTML CSS जावास्क्रिप्ट का नॉलेज होना चाहिए. साथ में CSS फ्रेमवर्क जैसे बूटस्ट्रैप हो गया उसका बेसिक नॉलेज होना चाहिए. तो इसके ऐसे कोई लिमिट नहीं होती कि कहाँ तक करना चाहिए, कहाँ पे रुकना चाहिए. जावास्क्रिप्ट jQuery वेबसाइट के लिए जावास्क्रिप्ट jQuery फ्रंट एंड के लिए काफ़ी अच्छा है, जिसमें अपने मोबाइल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना सकते हैं. लेकिन इसकी जगह आजकल ट्रेंड आ गया है बूटस्ट्रैप, काफ़ी अच्छा इसकी जगह रिप्लेसमेंट आया है जो जावास्क्रिप्ट jQuery को यूज़ कर रहा है. लेकिन हाँ मोबाइल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट के लिए या फिर रिस्पॉन्सिव वेबसाइट के लिए jQuery इज़ द बेस्ट वन टिल नाउ. जावास्क्रिप्ट तो एंडलेस है. जावास्क्रिप्ट की कोई लिमिट नहीं है. जावास्क्रिप्ट अपन जहाँ पे भी सोच सकते हैं वहाँ पे आप अपने मोबाइल एप्लीकेशन भी बना सकते हो जावास्क्रिप्ट से, वेब एप्लीकेशन बना सकते हो, विंडोज सॉफ्टवेयर बना सकते हो, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बना सकते हो. जावास्क्रिप्ट आज के टाइम में बहुत रोबस्ट हो चुका है. इसकी कोई लिमिट नहीं है. जहां तक आप इसको लेके जा सकते हो वहां तक लेके जाओ जावास्क्रिप्ट को. वेब होस्टिंग सबसे अच्छा इजी वे होता है. एक तो वर्जन कंट्रोल आना चाहिए, जिसके अंदर गिट और गिटहब का नॉलेज होना चाहिए बेसिक. और साथ में अगर आपको फ्री टेस्टिंग करनी है, स्टैटिक वेबसाइट है जिसमें डेटाबेस नहीं है, तो नेटलीफाई बेस्ट है उसके लिए, जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ जब टेस्टिंग करनी होती कि हाँ अपने जब बिना डेटाबेस के जब टेस्ट करना होता है तो नेटलीफाई बेस्ट है. हाउ वी डिटेक्ट प्रोजेक्ट वैल्यू वेबसाइट. प्रोजेक्ट की वैल्यू कैसे निकालते हैं? सबसे पहले अपना उसके अंदर अपना क्या क्या कॉस्ट लग रहा है, जैसे कुछ सर्वर चार्जेस हो गए, डोमेन चार्जेस हो गए, तो ये अपना उसके अंदर निकालते हैं चार्जेस. फिर उसके बाद में लगता है कि अपन एक दिन का कितना कॉस्ट लगा रहे हैं और एक अपन प्रोजेक्ट को बनाने में कितना टाइम लगा सकते हैं. और ऐसा नहीं कि अपन प्रोजेक्ट बना दिया 10 दिन में और क्लाइंट को बताएं 20 दिन लगेंगे, ऐसा भी नहीं चलता. हाँ अपने को मार्जिन लेके चलते हैं. हाँ अगर 10 दिन का प्रोजेक्ट है तो अपन 12 दिन हाथ में लेके चलते हैं कि 12 दिन में बन जाएगा. 2 दिन बाई चांस कुछ भी हो जाता है तो 2 दिन अपने सेफ्टी पर्पज़ के लिए रखते हैं. तो अपन एक मार्जिन लगाते हैं. जैसे किसी को कोई लेता है 500 रुपीज़
पर डे का चार्ज लेता है, कोई 1000 लेता है, अगर और प्रोफेशनल जाते हैं तो 2000 3000 पर डे का भी चार्ज लेते हैं। तो बेसिकली होता है कि हाँ अपना सर्वर चार्ज कितना लग रहा है, डोमेन चार्ज कितना लग रहा है, फिर उसके बाद में अपना पर डे का चार्जेस कितना है, कितने दिन प्रोजेक्ट चलेगा, ये सब कुछ उसके अंदर वैल्यू पर निकालते हैं कोई प्रोजेक्ट की। फिर उसके बाद में और कई कंपनियां देखती है कि नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड कितने हैं, उसका एनालाइज करते हैं, लॉजिक्स कितने हैं ये भी देखते हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी का भी फर्क पड़ता है कि हाँ अपने कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया उसके अंदर। तो यानी कि इसके अंदर भी अपने काफ़ी पैरामीटर ले सकते हैं अलग अलग। और कोई क्वेश्चन हो तो पूछ भाई। इसको अपन जितना स्ट्रॉन्ग अपना बैकएंड होगा और सर्वर जितना अच्छा डेडिकेटेड सर्वर लेंगे तो वो काफ़ी अच्छा रहता है। यानी कि जब अपन ट्रैफिक संभाल सकते हैं, तो जैसे कि अपन बैकएंड कोई हल्का बैकएंड ना लेके, जैसे अपन स्ट्रॉन्ग बैकएंड लेते हैं, जैसे कि जेंगो ले लिया जो काफ़ी अच्छा बैकएंड है, जो हैवी ट्रैफिक को भी संभाल सकता है। फिर उसके बाद में अपन को डेडिकेटेड सर्वर लो। अगर आपकी बहुत बड़ी एप्लीकेशन होने जा रही है तो कोई क्लाउड होस्टिंग या फिर शेयर्ड होस्टिंग की बजाय डेडिकेटेड सर्वर पूरा खरीदो जो उस लोड को ले सके। और उसके अंदर जो डेटाबेस यूज़ करो तो एसक्यूएल यूज़ करो, नो एसक्यूएल की जगह एसक्यूएल यूज़ करो, जो काफ़ी ज़्यादा लोड को एक साथ एक्सेस ले सकता है। तो ये होता है ट्रैफिक को लोड करने का। और उसके साथ में मल्टीपल राउटिंग्स दे दो ताकि हाँ कोई भी एक पर्टिकुलर सिंगल पेज पे ज़्यादा देर ना रुके। तो कंपोनेंट बेस बना दो ताकि फ्रिक्वेंटली पेजेस शेयर होते रहे आपस में। और सिंगल पेज वेबसाइट लिमिट्स होती है उसकी भी। सिंगल आजकल जैसे ट्रेंड चल रहा है सिंगल पेज वेबसाइट का, जो बहुत अच्छा ट्रेंड है। लेकिन अगर आपकी बहुत बड़ी एप्लीकेशन है तो उसके अंदर पेजेस बनाओ, कंपोनेंट्स बनाओ, ताकि आपकी जो लोड है वो डाइवर्ट होता जाए अलग अलग पेजेस पे, ताकि एक पर्टिकुलर पेज पे भी ना लोड आए, पर्टिकुलर सर्वर पे भी ना लोड आए। और सर्वर लो तो डेडिकेटेड होस्टिंग लो आप पूरी, अगर आपकी बहुत बड़ी एप्लीकेशन है तो। यही सजेशन है मेरा। और बैकएंड में स्ट्रॉन्ग बैकएंड लेना चाहिए जिसके अंदर लॉजिक्स अच्छे होने चाहिए, और जो अपनी क्वेरीज है वो फ्रिक्वेंट इजी सर्चिंग होनी चाहिए, कोई हार्ड एल्गोरिदम नहीं लगे ताकि हाँ उसके अंदर टाइमिंग लग जाए उसको सर्च होने में। स्पेस इस टाइम में अपन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का भी यूज़ आ जाता है कि हाँ अपने को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी चाहिए कोई सर्चिंग के लिए कोई वेबसाइट के अंदर। तो यानी कि अपने को ईजी रखना पड़ता है कि हाँ अपने को बैकएंड थोड़ा सा सही होना चाहिए, फिर उसकी डेडिकेटेड शेयरिंग होनी चाहिए। ओके, नमस्ते सर, नमस्ते, गुड इवनिंग। एनी क्वेश्चन? हाँ गले का तो प्रॉब्लम चल ही रही है थोड़ी सी। आदित्य, होप मेरा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो। तो बस ये है कि हाँ मेन सबसे बड़ा इफेक्ट होता है कि अपने डेटाबेस यूज कौन सा करते हैं, अपने को डेटाबेस कौन सा, अपन सर्वर कौन सा ले रहे हैं। और आज के जैसे कि मैंने अभी आज थोड़ी देर पहले यूज़ किया था, यानी कि मैं सर्वर के बारे में देख रहा था, तब डिजिटल ओशन का डेडिकेटेड सर्वर्स काफ़ी अच्छे हैं। जैसे फिर AWS पे आ जाते हैं, उसके भी डेडिकेटेड सर्वर्स हैं। और फिर उसके बाद में अपन आते हैं आजर पे आते हैं, उसके भी काफ़ी अच्छे हैं। और अपने को लाइट वेटेड बनानी है तो फिर अलग अलग आते हैं, कोई पर्टिकुलर एक चीज़ के लिए अपने को यूज़ करना, सिंगल वेबसाइट के लिए सर्वर चाहिए तो फिर उसके लिए नेटलीफाई भी अच्छा है। नेटलीफाई स्टैटिक वेबसाइट के लिए काफ़ी अच्छा है, जिसके अंदर अपने को डेटाबेस नहीं होता, लेकिन हाँ उसके अपने काफ़ी इफेक्टिव है, काफ़ी अच्छा उसका रिस्पॉन्सिव मिल जाता है उसका। मैं काफ़ी प्रोजेक्ट्स में नेटलीफाई का यूज़ करता हूँ, पर्सनल रिव्यू। अब मैं थोड़ा सा फायरबेस पे शिफ्ट हो गया, फायरबेस सर्वर पे, जो वो भी काफ़ी अच्छा रिएक्ट के डिप्लॉयमेंट्स के लिए। कल की क्लास कितने बजे है? लाइव स्ट्रीम अपन रखेंगे संडे टू संडे। और अब मैं सोच रहा हूँ कि अगली लाइव स्ट्रीम में प्रैक्टिकल करें, कोई अच्छा सा कोई प्रोजेक्ट बनाएं वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड ही। देखते हैं अगर इंटरनेट कनेक्शन साथ देगा तो अपन प्रोजेक्ट करेंगे, वरना ऐसे लाइव इंटरेक्टिव सेक्शन रखेंगे। गूगल मीट पे ऐसे फिर सबको ज्वाइन करना पड़ता है, वो अलग प्लेटफॉर्म है। जो इंस्टाग्राम है वो ओपन प्लेटफॉर्म है, कोई भी आ सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके लिए अपने को फिर, नहीं तो गूगल मीट के लिए अपने को अलग अलग लिंक भेजने पड़ेंगे सबको।
गूगल मीट थोड़ा सा ऐसे बाउंडेड ऐसा है, लेकिन जो इंस्टाग्राम में अपन कहीं पे भी अपनी स्टोरीज को शेयर कर सकते हैं, किसी को भी अपन शेयर कर दो, कोई क्वेश्चन है तो कोई डायरेक्ट आके आप पूछ सकते हैं, पब्लिक अकाउंट है तो ऐसे, यानी इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं रहते कि हाँ कोई भी, इसलिए मैंने ये सोचा कि हाँ इंस्टाग्राम अच्छा है। होप अगला हो सकता है कि यूट्यूब पे भी आज लूँ, अगला अगर कोडिंग सेक्शन लूंगा तो प्रोजेक्ट बनाएंगे तो क्योंकि उसके लिए यूट्यूब काफी सही रहता है, उस पर इंस्टाग्राम पे ऐसा हो नहीं सकता, स्क्रीन शेयर और का सीन नहीं है। और कोई क्वेश्चन हो तो भाई पूछो। केबल कब सर, कालेब कब कर, क्या कोलेब्रेशन करना आपको? चलो अब टाइम देखते हैं क्या हो गया। स्ट्रीम बंद होने वाली है थोड़ी सी देर में ही, 1 घंटे का टाइम लिमिट मिलता है मेरा अकाउंट पे। और कोई क्वेश्चन हो? नथिंग ब्रो, यू आर अमेजिंग, आई नो आई एम अमेजिंग एंड यू आर ऑल्सो अमेजिंग, गुड, अमेजिंग पर्सनैलिटी। So all for today, let's close this live stream. Bye bye, and doing good, doing amazing, and keep coding. Bye bye, meet you next Sunday.